कि टोली बच्चों की गैंग आती है रैक पिकिंग करने के लिए, तो उनमें से एक बच्चे को पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर स्लीपर्स, व्हाई डोंट यू वेयर चप्पल्स? तो ही रिप्लाइज दैट माय मॉम डज नॉट अलाउ मी, माय मॉम डज नॉट गिव मी माय चप्पल्स. तो अनदर बॉय रिप्लाइज that even if she gives the chappals, he will not be wearing them. He will just throw them off because he feels free walking barefooted. He feels comfortable now. He has gone used to, he has gone habitual of this lifestyle where he does not want to wear any sort of chappals. That was the reply of another kid. So when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. जो दूसरा बच्चा आंसर करता है उसके जो शूज हैं वो भी मैचिंग वाले नहीं होते हैं, वो दोनों पैर में अलग अलग शूज पहन रखा होता है. तो जब ऑथर बोलती है कि तुमने दोनों पैर में अलग अलग शूज क्यों पहन रखे हैं, व्हाई हैव यू वोन डिफरेंट डिफरेंट शूज इन डिफरेंट लेग्स, then he has nothing to say. He is shy, he has embarrassed, he is mortified, he is abashed, and he does not have anything to say. He shuffles his feet, मतलब वो अपने पाँव को इधर उधर हिलाता है, and that is it. तीसरा बंदा बोलता है कि I want shoes. That person did not have any sort of shoes or slippers or any sort of chappals in his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot. बहुत बार ऐसा होता भी है, अगर आप गांव में जाएंगे रूरल एरियाज में, they have money, they are well off, they don't live a very poor lifestyle, but still उनको लगता है कि हमें हमारे जमीन से जुड़े रहना ज्यादा अच्छा लगता है. We should be connected to our ground, to our mother earth. That is why they do not wear any sort of chappals, any sort of shoes. अगर आप notice करेंगे, if you notice this thing, then many people who are living in rural areas have very strong immune power. उनकी immunity, उनकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. क्यों? बिकॉज वो अपने भूमि से, अपने सॉइल से, अपने अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं, एंड बीइंग barefoot is one of the reasons. तो it's not just because of lack of money, but their tradition, their convention, their rituals are in such a way that they do not like to wear any sort of shoes. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual matlab never ending, infinite, which is not going to end, immortal जिसको बोल सकते हैं. तो हो सकता है कि वो पुअर हो और उस पॉवर्टी को छुपाने के लिए, उस पॉवर्टी के एक्सक्यूज देने के लिए वो बोले कि हम तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. परपिचुअल, इमॉर्टल, जो कभी खत्म नहीं होता है, एंडलेस, इन्फिनिट. तो द पॉवर्टी विच इज नेवर गोइंग टू एंड, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको एक्सक्यूज करने के लिए वो ये बहाना देते हैं. सर व्हाट इज द आंसर ऑफ रेगामफिन? रेगामफिन इज रेफर टू द रैट ट्रैप सेलर, या इटर्नल यू कैन से चलेगा. इटर्नल इज ऑल्सो ए गुड वर्ड. Now, author is portraying a story, not a very important story. फिर भी पढ़ते हैं. I remember a story from UDP or UDP. I think it's a place in South India. Once told me, as a young boy, he would go to school past an old temple. अब आराम से समझना क्या लिखा हुआ है. There is a young boy, और एक टेम्पल था और एक स्कूल था. दिस इज स्कूल एंड दिस इज टेम्पल. यहां पे फ्लैग लगा हुआ है टेम्पल में. If someone is gathering things from garbage, then it describes that he is poor. Then why poet asked so? Actually, poet being poet, nahi, author. Author being a writer, she has a curious mind. She has an inquisitive mind. उसको पता है ये poverty है. But she wanted to ask, she wanted to know that are these children aware of the concept of poverty?
वो मुझे एक्चुअल में बताएंगे कि हम गरीब हैं इसलिए नहीं पहनते हैं, या इनके पास कोई दूसरा बहाना है, दूसरा एक्सक्यूज है जो उनके पेरेंट्स इनको फीड करते हैं, जो पेरेंट्स इनको बोलते हैं. मैंने कल आपको सुपारी वाला एग्जाम्पल दिया था. That lady was poor. She could not afford the 5 rupee packet of supari of beetles. That is why she allowed her son to get the 1 rupee packet. But her son doesn't know that they are actually poor or not, right? So that is why, of course, if the author is planning to write a story about poor people, हमारी बुक का नाम ही यही है ना कि द स्टोरी ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग. So if she's planning to write, so she will have to interview lot of people. She will have to know the story of lot of people. And that is why she asked Sahib that why are you not wearing chappal? Yeah, that is why she asked other rag pickers, why are you not wearing chappals? She knows the answer that they are poor, but she wants to know the perspective. She wants to know the opinion of those children themselves. All right. तो young boy है, वो टेम्पल और स्कूल, उसकी स्कूल जो है वो टेम्पल के पास में है. इट्स वेरी एडजेसेंट, इट्स वेरी नेक्स्ट. ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट. यंग बॉय के जो फादर थे वो इसी टेम्पल में काम करते थे, पंडित थे. ही वॉज अ प्रीस्ट ओवर देयर. हेलो हर्षवर्धन, आउट ऑफ द ब्लू आप हाई बोल रहे हो. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Of course, this boy was poor. तो जब भी वो स्कूल जाता था, रास्ते में उसके पापा का टेम्पल आता था, and in that temple he used to stop and he used to pray that please God, please Lord, give me a pair of shoes. Let me have some pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब 30 years बाद जब ऑथर उस टाउन को वापस विजिट कर रहे हैं, उस विलेज को वापस विजिट कर रहे हैं, now what is happening? The temple is faded. It is now drowned in an air of desolation. मतलब अब उस टेम्पल में इतनी आरती नहीं होती है. It has become an old building. No one is going to worship over there. That डेजोलेशन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस जिसको बोल सकते हैं, डिजेक्टेडनेस हम जिसको बोल सकते हैं. तो डेजोलेशन में वो पूरा गांव या पूरा टाउन जो है वो छा चुका था. इन द बैकयार्ड where lived the new priest. Of course, 30 years later there will be a new priest, new pandit in the temple. तो वो उस re-explain the line please. It's very easy. 30 years later I visited his town and temple. 30 साल बाद ऑथरस जो है वो उनकी टाउन को विजिट करते हैं, उडीपी को, उडीपी टाउन को. और वहां क्या होता है, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में आजकल सैडनेस की लहर चल रही है, सैडनेस की हवा चल रही है, दुख की लहर चल रही है. तो इन द सेम सेंस the whole temple or the whole town was drowned, it was sunk in the air of desolation, in the air of sadness, in the air of disappointment. होते हैं बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे टाउन्स चेंज हो जाते हैं. मैं मेरे मैटरनल होमलैंड की बात करूं, मेरे ननिहाल की बात करूं, तो वी यूज्ड टू विजिट माय ननिहाल every summer, and we used to stay there for 1 month or 2 months of the summer vacations. But now when I go there, things have changed. It does not feel like village anymore. It feels like an advanced version of a town, or almost like a city like aura. So there is no what we can say free people, comfortable. वो गैलेसबर्ग जैसा वातावरण वहां नहीं रहा है. अब वो सिटी बनने लग गया है, धीरे धीरे वहां एडवांसमेंट आने लग गए हैं, लोग अपने आप में बिजी रहते हैं. तो ऑफ कोर्स देयर इज अ टिंज ऑफ सैडनेस. अब मुझे गांव जाना पसंद नहीं है, मैं खुद नहीं जाना चाहता हूँ. तो दैट इज व्हाट कि देयर इज एन एयर ऑफ डेसोलेशन. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट. वो उस बैकयार्ड में गई जहां पर नया पंडित रहता है. देयर वर रेड, सॉरी, न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. अब थोड़ा देखो एडवांसमेंट आया है. पहले ऑफ कोर्स 30 साल पहले टेम्पल के पंडित के पास में चेयर्स नहीं होती थी, बट नाउ इट हैज रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. A young boy dressed in a gray uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on folding bed. Of course, वो priest का लड़का हो सकता है, या उसका grandson हो सकता है, या son हो सकता है. तो a young boy who was wearing uniform, he was wearing
shoes and socks, and he had a proper school bag. And what happened, he arrived there panting matlab haafte hue, breathless, breathless. When you are catching your breath, when you are running very fast, you lose your breath. So he was panting and threw his school bag on the folding bed. मतलब इन तीनों लाइनों में यही बताया गया है कि there has been a little advancement in people's life. प्रीस्ट के पीपल जो है थोड़ा थोड़ा पॉवर्टी को ओवरकम कर रहे हैं, धीरे धीरे दे आर ओवरकमिंग द पॉवर्टी. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. अब जो ये ओरिजिनल यंग बॉय था, उसने प्रेयर की थी टेम्पल में कि प्लीज गॉड लेट मी हैव अ पेयर ऑफ शूज, और इवेंचुअली ही गॉट अ पेयर ऑफ शूज. और फिर जब उसको शूज मिल गए तो उसने वापस प्रेयर किया कि प्लीज डोंट लेट मी लूज दीज शूज, मुझसे ये कभी खो ना जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेस फुलफिल्ड हिज विश, हिज डिजायर, एंड यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. तो वो कुल मिला के पोएट सॉरी ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे एक यंग बॉय ने गॉडेस के सामने प्रेयर किया था कि हे माँ, प्लीज लेट मी हैव अ पेयर ऑफ शूज. द गॉडेस ग्रांटेड हिम द विश. और उसके बाद में जितने यंग बॉयज वहां प्रे करते थे, उन सबको गॉडेस ने शूज ग्रांट किए. बट मेनी अदर्स लाइक द रैट पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. ऑफ कोर्स उन रैट पिकर्स की कहानी यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट थी. उनको टेम्पल से डोनेशंस नहीं मिलता था, उनको प्रीस्ट का दक्षिणा नहीं मिलती थी. ऑफ कोर्स दे हैड अ वेरी मिजरेबल लाइफस्टाइल, सो दे कुड नॉट अफोर्ड शूज, दे कुड नॉट अफोर्ड प्रॉपर क्लोथ्स फॉर देमसेल्व्स. ऑलराइट, मूविंग ऑन. माय अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस मतलब फेमिलियरिटी. आप किसी को जानते हो, दैट इज कॉल्ड अक्वेंटेंस. तो माय फेमिलियरिटी विद the barefoot rat pickers leads me to Simapuri. Now, Simapuri is a slum area. It is a suburban area where people of lower class used to live. People of extreme lower class used to live. हमने slum area पढ़ा है. Slum आप जानते हैं, झुग्गी झोपड़ियां आप जानते हैं. तो it leads to the Simapuri, a place on the periphery. Periphery मतलब होता है border, border. It was in the border of Delhi, yet miles away from it metaphorically. समझते हैं इसका क्या मतलब है. दिल्ली, दिल्ली क्या है? इट्स द कैपिटल ऑफ आवर ग्रेट नेशन, कैपिटल ऑफ इंडिया. मतलब इट शुड बी एडवांस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स. यहाँ पे टेक्निकली एडवांसमेंट, रिलीजियस एडवांसमेंट, फिनेंशियल एडवांसमेंट, every sort of advanced thing should be there because it's the capital of India. तो इमेजिन करो कि दिल्ली इतना बड़ा सिटी है, तो आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करोगे दैट द सिटीज और द प्लेसेस और द लोकेशंस नियर बाय दिल्ली विल आल्सो बी वेरी वेरी एडवांस, विल आल्सो बी वेरी वेरी डेवलप्ड. बट इट वाज नॉट द केस सो. मतलब दिल्ली के बाउंड्री में सीमापुरी जरूर थी, सीमापुरी था दिल्ली के बॉर्डर पे, मतलब वो दिल्ली से कुछ ही माइल दूर था. बट in the manner of development, in the manner of advancement, in the manner of growth, it was miles away. Miles away मतलब दिल्ली और सीमापुरी में मेटाफोरिकल डिस्टेंस बहुत सारा था. मेटाफोरिकल मतलब जो एक्चुअली ट्रू नहीं है, जो जिससे हम सिमिलैरिटीज रिलेट कर पाते हैं, दैट इज योर मेटाफोर, नॉट मेटाफोरिकली. समझ में आ रहा है? दिस थिंग यू गॉट इट कि सीमापुरी और दिल्ली, इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस जो है, इट इज वेरी वेरी लेस. बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट द डिस्टेंस इज माइल्स एंड माइल्स अवे. सो सच अ लार्ज डिस्टेंस, सच अ ह्यूज डिस्टेंस देयर इज. अब समझ में आया महक? मैंने वापस से आपको बोला, the actual distance, the geographical distance between सीमापुरी and Delhi was less. क्यों था लेस? क्योंकि सीमापुरी दिल्ली के बाउंड्री में लोकेटेड था, उसके पेरिफेरी पे लोकेटेड था. बट in terms of growth, in terms of development, in terms of infrastructure, in terms of resources, in terms of opportunities,
the actual Simapuri was very very far from Delhi. दिल्ली में जो तड़क भड़क थी, दिल्ली में जो ग्रोथ रेट थी, वो ग्रोथ रेट this I got, but the complete line I didn't get. My acquaintance with barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. वो सीमापुरी तक पहुंच गई तहकीकात करते करते, इन्वेस्टिगेशन करते करते, उन बच्चों से इंटरव्यू लेते लेते. द सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. वो दिल्ली के बॉर्डर पर लोकेटेड है, yet miles away from it metaphorically. बट अगर हम मेटाफॉर की बात करें, अगर हम दिल्ली और सीमापुरी के रिलेशनशिप की बात करें, तो इन दोनों में माइल्स एंड माइल्स का फर्क है, बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर टाउन्स, दे आर नॉट सिमिलर सिटीज. अब समझ में आया आपको? Okay, moving forward. Those who live here are squatters who came back from Bangladesh in 1971. स्क्वाट करना, अच्छा स्क्वाट अगर आप लोग फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देते हो, स्क्वाट मतलब टू सिट. यहाँ स्क्वाटर्स का मतलब है ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आके अब अपना डेरा यहाँ जमा दिया है, अब ये लोग अपनी गृहस्थी को यहाँ बसा दिया है. दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर लाइवलीहुड इन सीमापुरी. दे हैव इमिग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश एंड नाउ दे आर सिटिंग इन आवर कंट्री. स्क्वाटर्स मतलब समझ में आया? दे आर इमिग्रेंट्स. दे हैव इमिग्रेटेड, दे हैव ported themselves from Bangladesh to Simapuri to India. तो साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. साहिब आलम की फैमिली भी उन स्क्वाटर्स में से, उन इमिग्रेंट्स में से है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. उस टाइम पर सीमापुरी एक विल्डरनेस थी. इट वॉज नॉट अ प्लेस ऑफ सिविलाइज पीपल. इट वॉज अ बैरन लैंड. इट वॉज एन अबैंडन्ड लैंड. उसको छोड़ दिया गया था, वहां पर कोई घर गृहस्थी नहीं थी. सर, हु अलाउड देम टू क्रॉस बॉर्डर? नंदिनी, I think this chapter was written 20 years ago, मतलब in 1990s. और फिर ये कहानी और भी पुरानी हो सकती है, given this the time when the writer wrote this story. तो approximately अगर हम 30-40 years का गैप लेके भी माने, तो at that time rules were not so strict. Immigration laws were not so strict. पहले बॉर्डर से इधर उधर आने में इतना पासपोर्ट वीजा वाला सिस्टम नहीं था, राइट? तो दैट इज वाई, और बहुत सारी बार हम क्या बोलते हैं, रेफ्यूजी कैंप्स भी होते हैं. सपोज इफ यू हैव कमिटेड एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम इन अमेरिका, अगर आप अमेरिका में कोई क्राइम कर लेते हो, एंड इफ यू आर एबल टू पास द बॉर्डर्स टू कनाडा, आप कनाडा चले जाते हो, तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कर सकती है. So sometimes you seek refugee in other countries कि हमारी हालतें यहाँ खराब है. Suppose someone is bothering you, someone is threatening you of murder, someone is trying to kill you, and if you flee to other country for the sake of protection, then that country will protect you. It will definitely protect you. सो ऐसा होता है बहुत बार, बहुत सारी बार, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दे माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो उस टाइम पर सीमापुरी वाज नॉट अ प्लेस ऑफ लिविंग. वहां पर रहना पॉसिबल नहीं था, और अभी भी रहना पॉसिबल नहीं है, बट दे आर स्टिल मेकिंग इट वर्क. दे आर स्टिल moving here and they are still establishing. Sir, why Simapuri was less populated at that time? तो ऑफ कोर्स जो जिसमें आप गुजर बसर नहीं कर सकते हो, वेयर यू कैन नॉट लिव प्रॉपरली, देन व्हाई वुड पीपल वांट टू लिव देयर? तो जो माइग्रेट होके आते थे, उनकी पॉपुलेशन ही वहां रहती थी. अदर पीपल हु आर ऑलरेडी established in Delhi or who are already established in India, they would not be willing to live in slum area, in a slum dump. साहब्स फैमिलीज अमंग देम. सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस. जिस टाइम पे साहब की फैमिली यहाँ पर मूव इन किया, यहाँ पर माइग्रेट किया, तब सीमापुरी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, and it is still in a very bad state, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहां के घर किससे बने हुए हैं? मड से बने हुए हैं. मड मीन्स रेत.
It is not made up of concrete, cement, or bricks. It is made up of mud with roofs of tin and tarpaulin. Tarpaulin और tin के आपने देखा होगा ये जो छज्जे बनाते हैं हम, छज्जे टिन के छज्जे बनाते हैं, शेड्स बनाते हैं, तो उस टाइप के रूप्स होते थे. देयर वाज नो, डिवॉइड मींस मिसिंग या नो अवेलेबिलिटी. डिवॉइड मींस देयर वाज नो अवेलेबिलिटी ऑफ सीवेज. वहां पे सीवेज लाइंस नहीं थी, ड्रेनेज लाइंस नहीं थी, और रनिंग वाटर. वहां नल और नालियां प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं थे. बट स्टिल 10,000 रैक पिकर्स वहां पर रह रहे हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. सी अगेन प्रूविंग माई पॉइंट. अभी आज के टाइम पे अगर आपको वोटर लिस्ट पे आना है तो यू मस्ट हैव अ वोटर आईडी, यू मस्ट हैव एन आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाना कंपलसरी है, आपका पैन कार्ड बनाना कंपलसरी है. तो ऑल दीज थिंग्स आर कंपलसरी इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड. और अभी 5-7 साल में इन चीजों को मैंडेटरी नेसेसरी किया गया है. बट 30 years ago और 40 years ago it was not at all compulsory. They did not have an identity, they did not have proper permits, proper license, proper permissions, but still they had their ration cards, they had their names on voter id, voter list, and they could buy grains, they could buy necessary items of their household at cheaper rates, at less price. फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. उनके दिमाग में यही था, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, कोई चीज नहीं है, इट्स ओके, हमारे लिए राशन कार्ड है जिसके थ्रू हमें हमारा फूड मिल जाता है चीपर रेट पर, इनएक्सपेंसिव रेट्स पर मिल जाता है. दैट इज व्हाट मैटर्स. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, aching stomach मतलब paining stomach, और stomach क्यों pain करेगा? If it is empty. So if we are fully fed, if we are satisfied, if we go to bed without hunger, that is success for us. That is a very big achievement for us. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. हमने पढ़ा था ढाका के फील्ड्स में, ढाका के खेतों में, फार्म्स में बार बार स्टॉर्म्स आते थे, बार बार नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स हिट करते थे. So of course there was no grain, there was no food in Dhaka. So the people who were living in Simapuri, the rag pickers, had this notion, had this understanding, had this conception, this thought in their mind that if they are able to feed their children and their family for 2 times a day, if they are not going to sleep with hunger in their stomach, that is a far better thing than living in their own homeland with no food at all. इतना क्लियर है आपको? Is this clear or not? जल्दी से yes or no लिख के भेजो, वापस से yes or no लिख के भेजो. Yes, okay. ये बात किसने कही? यहां से कोट स्टार्ट हो रहा है हमारा और यहां पे खत्म हो रहा है कोट. Say a group of women in tattered saris. Tattered means worn out, depreciated. जिसकी साड़ी का पल्लू इधर उधर हो रहा है या क्या बोलते हैं, फट रही है साड़ी, that is worn out, depreciated you can say. Depreciated saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब ऑथर ने उनसे पूछा, उनसे इंटरोगेट किया, उनसे क्वेश्चन किया कि आपने अपना होमलैंड क्यों छोड़ा, इवन दो इट वाज सो ग्रीन एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, तो उन औरतों का यही जवाब था. द लेडीज, द वुमेन ऑफ सीमापुरी रिप्लाइड दैट वी वुड बेटर स्टे हियर एंड ईट फूड rather than staying at our homeland and starve to death. एकिंग स्टमक, एक मतलब पेन, हम बोलते हैं स्टमक एक हो रहा है, यहाँ पे एकिंग स्टमक का मतलब है खाली स्टमक, empty stomach. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. So they move from one place to another. Of course, ऐसा तो है नहीं कि ढाका को लीव करके they directly came to सीमापुरी, ऐसा तो हुआ नहीं है. अगर उनको बीच में यहाँ जगह मिला तो they will come here, they will establish their tents, they will establish their temporary home, and
If the food got finished here, they would move from one place to another. That was the way of these Simapuri, these rag picker people. So wherever they would find food, they pitched their tents, they dug their tents, they established their tents that become transit homes. Transit मतलब जो one place से दूसरे place पे move करता है. Movable हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं portable. So of course it was a portable home, it was a temporary home. They used to move from one place to another. Children grow up in them. Of course children had to grow up in them. उनके पास कोई choice नहीं था, कोई option नहीं था permanent home का. They used to live in a temporary home, becoming partners in survival. They used to help their parents, they used to assist their parents in earning a proper livelihood. That was the what we can say effect of poverty. That was the charm of poverty. That was the consequence of having poor parents, कि उनको भी अपने parents की help करनी पड़ती थी. Though through the years it has acquired the proportions of a fine art. अभी सीमापुरी के लोग जो है इतने सालों से रैक पिकिंग कर रहे हैं, तो अब उनके लिए वो एक बिजनेस नहीं रहा है. इट हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ एन आर्ट फॉर देम. It has become a means, a platform, a medium of art for them. Garbage to them is gold. उनको लगता है, oh my god, gold आ गया है. Actually, my father has a gold shop. उनका ज्वेलरी शॉप है. तो हम क्या करते हैं? Of course, whenever we go to our shop, our office, रोज झाड़ू निकालते हैं. वी स्वीप द फ्लोर, और हम उस कचरे को, उस गार्बेज को कभी बाहर नहीं फेंकते हैं. वी कलेक्ट देम इन अ सेपरेट बॉक्स. और जब भी दिवाली आती है, some people come to us and they purchase that garbage for 3,000 rupees, 4,000 rupees, 5,000 rupees. और फिर बाद में वो उस गार्बेज में से गोल्ड को कलेक्ट करते हैं. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड. तो इमेजिन करो, वो लोग गार्बेज को गोल्ड समझते हैं. इसका मतलब वो उसमें से कोई प्रेशियस आइटम, वैल्यूएबल आइटम को कलेक्ट करते हैं. ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं. काफी पढ़ लिया हमने. आप लोगों को मैंने सॉरी किसके हैं, थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर दिए हैं. डू कंप्लीट देम इन योर कॉपीज. हैव टू कंप्लीट देम इन योर कॉपीज कंपल्सरीली. उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन समझाओ, ये वर्ड समझाओ. ऑलराइट गाइस, बाय बाय. Thank you very much. Welcome. Thank you, Fahiza.